पड़े रहते हैं, अपने आप उग जाते हैं मेरे बाड़ी में। बाढ़ में तो यही तो खाते हैं। मदर इंडिया पहली बार नाम सुना था इसका। This conference will now be recorded. We'll start now. Just a minute. Good afternoon to all. We, Shailya Rasashala, are engaged in manufacturing of Rasaushadis as far as you all know. Besides this, as a part of continuous education, we arrange series on different clinical topics. This month, we have arranged series on autoimmune diseases. In this series, as per schedule, today is second lecture, but due to some reason, we couldn't conduct first lecture. But as an opening speaker, it is my pleasure to welcome Dr. Prasad Pankar, sir. Sir is Pune-based academician and clinician of Ayurveda. He works as associate professor in Ayurveda physiology at Bharati Vidyapeeth College of Ayurveda. He is university authorized PG and PhD guide for Ayurveda physiology. He is clinician at Dr. Pankar's Pran Ayurveda multi-specialty clinic and Panchakarma Center, which is located at Pune and Mumbai. He is also associated with Sri Vishwavati Ayurveda Chikitsalaya and Research Center, Kolhapur, as chief consultant for research and development. As an academician, he is working for one project, whereas three are in pipeline. He has delivered more than 20 lectures as resource person in several conferences and workshops and residential Gurukul. He is reviewer for some prominent peer-reviewed journals in field of Ayurveda. He has published 12 papers. He is member for Board of Studies for Bharati Vidyapeeth and Goa University. Epistemology, translational research, applied physiology are his area of expertise. His recent paper is about translation of COVID pathophysiology in Ayurveda pathophysiological framework. As a clinician, he is practicing in Pune and Mumbai since 2005. His clinical interests are cancer, neurology, liver and metabolic diseases, diabetic complications, and infertility. He is chief coordinator for COVID-19 research activities by Sri Vishwavati Ayurveda Chikitsalaya and Research Center, Kolhapur. Two formulations by said research center, namely Madhav Rasayan and Madhav Rasayan Plus, are found effective in COVID-19. For efficacy evaluation, RCTs, randomized controlled trials, are in undergoing stage. He is working on 3 research projects, including one multi-university, multi-national project funded by European Commission. With this brief introduction, I request Sir to start his session. Thank you. Sir, please start. Thank you, Chinmayji. Good afternoon, everybody. We were actually very eager to listen our first speaker, that is Ram Manoharji. Even I was excited, but due to some things, he has postponed his session. And it could have been better. ये बहुत ही अच्छा होता अगर राम मनोहर जी इस ऑटो इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ कहते एंड देन फिर फिजियोलॉजी पैथोलॉजी डिफरेंट केसेस वगैरह की बात शुरू हो जाती. ठीक है. सो आई एम परहैप्स मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो तो फिजियोलॉजिकल रिलेटेड है, लेकिन बीइंग अ ओपनिंग स्पीकर आई मस्ट टेल अ फ्यू थिंग्स अबाउट ऑटो इम्यूनिटी एंड उसका आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन कहने के लिए तो हमारे पास जुगलेकर सर जी भी बात करेंगे, राम मनोहर जी भी बात करेंगे, सभी लीजेंड्स वी हैव. सो आई एम हियर जस्ट टू स्टार्ट विथ फ्यू थिंग्स दोज आर associated with my domain, that is physiology. So physiological basis for autoimmune diseases and Ayurveda basics.
सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इम्यून मैकेनिज्म या फिर इम्यून सिस्टम, मैं पिछले 2 साल से इम्यून सिस्टम या इम्यून मैकेनिज्म पे यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसे सिस्टम कहने के बजाय आई एम प्रेफरिंग टू यूज द वर्ड मैकेनिज्म, क्योंकि इट इज रियली अ वेरी डायनेमिक, एक्चुअली ईच एंड एवरीथिंग इज डायनेमिक, ह्यूमन बॉडी में हर चीज डायनेमिक है, एक हम ही हैं जो उसे स्टैटिक समझने की भूल करते हैं। लेकिन जहां तक इम्यून की बात है तो इसे मैकेनिज्म कहना ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक इसके एनाटॉमी का सवाल है, हम सभी जानते हैं एडिनॉइड्स है, टॉन्सिल्स है, लिम्फोइड टिश्यूज है बॉडी में, एंड देन द लिम्फ नोड्स एंड पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, ये सभी हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बोन मैरो भी है, एंड एक चीज जो रह जाती है, स्प्लीन वगैरह का तो उल्लेख हम लोग कर लेते हैं, उसे ध्यान रखते हैं, लेकिन थाइमस इज अ ग्लैंड जो हमारे स्टर्नम के पीछे है, एंड यहाँ पर टी सेल्स, रादर इसीलिए उन्हें टी सेल्स कहा जाता है। सो टी सेल्स वहां पर मैच्योर होते हैं, एंड विथ एजिंग थाइमस श्रिंक्स, and that is why being old age is itself a reason for immunosenescence. Immunity naturally कम होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण एजिंग क्यों है, क्योंकि that is directly associated with thymus shrinking. So एक थाइमस हम लोग भूल जाते हैं अक्सर, एंड जहाँ तक आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी की बात है, थाइमस का तो आई गेस पूरे आयुर्वेद शरीर क्रिया में बुक में सिलेबस में कहीं जिक्र भी बहुत ही हैरानी से हमें मिल जाएगा। लेकिन इट इज प्रोफेसर किशोर पटवर्धन जी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपनी किताब में थाइमस को अवलंबक कफ कहा है। मतलब अवलंबक कफ के इंटरप्रिटेशन के वक्त क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो उसमें अक्सर हम लोग सिर्फ हार्ट लंग की मीडियास्टाइनम रिलेटेड चीजें ही समझते हैं, लेकिन थाइमस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। सो वो एक रेफरेंस अगर पटवर्धन जी का छोड़ दे तो बाकी तो हार्डली रेफरेंस मिलता है। सो दैट इज द एनाटॉमी, ये सभी ऑर्गन्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं इम्यून मैकेनिज्म में या इम्यून सिस्टम में। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स ये इसका पहला टाइप है, एंड देन दूसरा स्पेसिफिक वाला इम्यून रिस्पॉन्स। सो इसमें क्या क्या है बेसिकली इम्यून मैकेनिज्म या फिर इम्यून सिस्टम में, तो कवर करने के लिए एक तो सबसे पहला फिजिकल बैरियर है, दैट इज इपिथेलियम। दैट इज पर्टिकुलर इपिथेलियम में भी वहाँ की स्पेशलिटीज है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, या फिर जीआईटी में है, या फिर बॉडी के हेयर्स है, सीलिया है, ये सभी फिजिकल बैरियर्स है। देन अपार्ट फ्रॉम दीज फिजिकल बैरियर्स, वहाँ पर केमिकल बैरियर्स भी है। सो डिफरेंट इपिथेलियम पे होने वाले डिफरेंट सिक्रीशंस है। सलाइवा अपने आप में है, दैट्स व्हाई सलाइवा का टेस्टिंग, सलाइवा में कितने सारे आईजीजी आईजीएम मार्कर के लिए सिंपल सैंपल कनेक्ट करने की जगह बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स में यूजुअली लोग करते हैं। तो सलाइवा इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली इस हिसाब से भी बोधक कफ की तरफ देखने की आवश्यकता है। बोधक हो रसनास्थायी, ये तो वाग्भट जी ने कहा है, वो तो है ही, लेकिन सलाइवा इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इम्यून, जहाँ पर इम्यूनिटी एक्सप्रेशन काफी अच्छा मिलता है। ऐसा ही एक बॉडी का ये सैंपल हम जहाँ से ले सकते हैं, ऐसा जगह है। म्यूकस है, देन बाइल है, गैस्ट्रिक एसिड है, स्वेट है, टीयर है, सो ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो उसमें ये सब कुछ चीजें हैं। दीज आर केमिकल बैरियर्स, and then apart from these chemical barriers there is a thing ki non-specific responses, inflammation and complement. So inflammation hona वो पूरा स्लाइड करने से अक्सर नहीं होता, मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो हो जाएगा शायद। अब हो रहा है। हेलो, यस सर, हो रहा है। हाँ, यूजुअली बहुत सारे ऐप्स पे होता ही है कि पूरा स्क्रीन करने पे स्लाइड मूव नहीं होती। ठीक है। सो फिजिकल बैरियर्स देखे हमने, केमिकल बैरियर्स है, एंड देन इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड चीजें है। कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, केमोटैक्सिस है, सेल लाइसिस का मैकेनिज्म है, एग्लूटिनेशन का मैकेनिज्म है,
एंड देन एक्चुअली काम में आने वाली जो सेल्स है उसमें डीसी डेंड्रिटिक सेल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, साथ साथ मैक्रोफेजेस भी। आगे एक इमेज आएगा उसमें भी यही दो सेल्स है, क्योंकि मतलब ये इग्निट करने वाली ये दो सेल्स इंपॉर्टेंट है, मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल्स। देन न्यूट्रोफिल्स है जिनका मेन एक्शन ब्लीचिंग एक्शन है। देन बेसोफिल्स है, मास्ट सेल्स है, जब टिश्यू में होंगे तब ये काम करने वाले हैं। एंड पैरासाइट पे काम करने के लिए या फिर एलर्जीज में जो एक्टिवेट होते हैं वो है इओसिनोफिल्स एंड एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। हम लोग इसके बहुत सारे पेपर्स देखते हैं गूगल वगैरह पे कि एलोवेरा का एक्शन ऑन एनके सेल्स वगैरह वगैरह। सो नेचुरल किलर सेल्स भी इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स इज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी स्ट्रेसर, कुछ भी स्ट्रेसर हो, तो जो बॉडी सबसे पहले जो सिस्टम वहां पे काम करेगा दैट इज इनेट सिस्टम। सो नेचुरल किलर सेल्स उसी का हिस्सा है। एंड जहां तक अब यहाँ पर एक्चुअली मुझे फिजियोलॉजी पे कहने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ कमेंट्स कर रहा हूँ तो अपोलॉजी चाहे। लेकिन अक्सर हम लोग फाइटोकेमिकल्स, वनस्पतियों की एक्शंस देखने के लिए जाते हैं, तो ज्यादातर इनेट इम्यून रिस्पॉन्स की ही इसके मतलब हमको ये मिलते हैं, उसका जो भी इम्यूनोमोडुलेटरी एफिकेसी मिलती है वो इनेट वाली ही ज्यादातर मिलती है। And then another response is adaptive immune mechanism, that is adaptive immune system. So this is very specific. इसमें T cells and B cells है। So difference अगर देखने जाए तो innate immune response यानी कि कोई भी stressor हो तो एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो सबसे पहला वाला रिस्पॉन्स दिया जाएगा दैट इज इनेट। अडेप्टिव इम्यून मैकेनिज्म में दैट इज वेरी पैथोजन स्पेसिफिक एंड एंटीजन स्पेसिफिक। तो कोविड के टाइम पे यही तो हमारी समस्या है कि कोविड के लिए आयुर्वेद में मेडिसिन है क्या है? हम लोग तो नॉर्मल सर्दी खांसी वाला कुछ भी दे दो, कोई वैद्य जी है संजीवनी दे रहे हैं, कोई वैद्य जी है त्रिभुवन कृति दे रहे हैं, कोई माधव रसन दे रहा है, फिर भी रिजल्ट आ रहा है। सो ये हम लोग जब कह रहे थे तब ये मेडिसिन आपका कोविड के लिए प्रूवन है क्या? ऐसा दुनिया हमको पूछ रही थी। सो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग रिजल्ट दिखा सकते हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स पब्लिश भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक हम ये एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं बता पाएंगे कि ये कोविड स्पेसिफिक ये इसका स्पाइक प्रोटीन है एंड उस पे ये मॉलिक्यूल जाके चिपक रहा है, माधव रसायन का हो, त्रिभुवन कृति का हो, व्हाटएवर, तब तक वो मतलब वो कोविड का मेडिसिन नहीं कहलाता। सो मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी यूज करने में फायदे भी होते हैं और तोटे भी होते हैं। तो समस्या दिक्कत ये है कि एक बार हमने वो सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, यस हमारा मेडिसिन कोविड का मेडिसिन है ऐसा जब हम कहते हैं, तो दैट विल नॉट बी प्रूवन अनलेस एंड अंटिल वो पैथोजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इग्नेट कर रहा है ये देखे, और इतने बड़े मॉडल पे काम कर सके ये हमारा मतलब रिसोर्सेस एंड ये सब कुछ इश्यूज है। सो कोविड में वगैरह में हम लोगों ने जो भी काम, हम लोगों ने जिस क्वालिटी का एविडेंस दिया वो टाइप एंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस वाज मोर क्लिनिकल। लेकिन दुनिया जो कि इम्यून रिस्पॉन्स का बेसिक टाइप ही मानती है कि दिस इज इनेट एंड दिस इज एडेप्टिव। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि अब हम लोग जब कहते हैं कि एलोवेरा भी इम्यूनोमोडुलेटर है, तो ज्यादातर पेपर अगर हम लोग देखने को जाए तो वो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स वाले ही मिलते हैं। देन दूसरा डिफरेंस जो है कि इनेट इम्यून सिस्टम में ल्यूकोसाइट्स है, देन यहाँ पर बी एंड सी सेल्स है, एंटीजेंस एंड देन बी एंड सी सेल्स है। यहाँ पर जो है कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स पहला रिस्पॉन्स है, कुछ भी स्ट्रेसर आ जाए तो देखिए इम्यून सिस्टम है किस लिए? ये है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। किसी फिजियोलॉजिस्ट ने, मतलब मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन उनका एक ऐसा सेंटेंस है कि बॉडी में दो ही सिस्टम्स हैं। ये आप कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी वगैरह कह रहे हो, लेकिन बॉडी में सिस्टम्स दो ही है, एक है एंडोक्राइन नर्वस एंड ये अपना क्या इम्यून। क्योंकि ये तीनों का अल्टीमेटली जो गोल है वो गोल है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। कार्डियोवैस्कुलर का भी गोल होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर इज पर्टिकुलरली हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन ओवरऑल होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए कुछ अगर है तो वो नर्वस है, एंडोक्राइन है एंड इम्यून मैकेनिज्म है बेसिकली। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि ये आगे की स्लाइड में भी आएगा कि ये
हाउ इट इज लिंक्ड विद अनदर सिस्टम्स आल्सो. इम्यून मैकेनिज्म मतलब सिर्फ नेचुरल किलर सेल या सिर्फ ये सेल और उसमें कुछ एफिकेसी देखी गई है ऐसा भी नहीं है. आगे हम देखेंगे उसका और भी चीजों से संबंध है. एक्सपोजर लीड्स टू, हाँ, तो ये मैक्सिमल रिस्पॉन्स मिनिमम टाइम में देगा. एंड यहाँ पर ज्यादा रिस्पॉन्स, ज्यादा समय लगेगा रिस्पॉन्स देने के लिए एडेप्टिव इम्यून मैकेनिज्म में. इनेट सिस्टम जो है वो सेल मेडिएटेड है एंड ह्यूमरल है, ये भी वही है. इनेट इम्यून मैकेनिज्म में कुछ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं है. जबकि एडेप्टिव इम्यून मैकेनिज्म में हम अगर देखेंगे तो एक बार एक्सपोजर हो गया तो दैट विल लीड टू इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कि ऐसा ऐसा एक कोई एंटीजन आता है एंड देन उसको इस तरीके से डिफेंड करना है. ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एक्चुअली पूरा वैक्सीनेशन का बेसिस ही इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे है. तो जब कोविड आया तो यही एक्चुअली मैं कुछ इम्यून सिस्टम पढ़ रहा था 2-3 साल पहले की बात है. एंड आई फाउंड कि टुचिडियस नाम का फिजिशियन था, ग्रीक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, उसका पीरियड कुछ 406 है BC. तो उसने सबसे पहले ये नोट किया कि कुछ कुछ डिसीजेस ऐसे हैं कि जो एक बार होते हैं तो दूसरी बार होते हैं तो उतने सीवियर नहीं होते, या फिर एक बार हो गए तो दूसरी बार नहीं होते हैं. सो ये जो है कि एक एक्सपोजर हो गया तो बाद में उसकी कुछ मेमोरी बॉडी में रह जाती है. उसके लिए इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी तो ये तो वर्ड उसने दैट टाइम ग्रीक मेडिसिन में नहीं यूज किया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में नोट करके रखा. एंड दैट टाइम फिर हम लोगों ने मतलब मैंने जो भी मेरे मेंटोर्स जिनसे मैं पूछ सकता था उनसे ये पूछा था कि ऐसा आयुर्वेद में कहाँ है क्या जिनका ग्रंथों का अच्छा अध्ययन है कि एक बार डिसीज हुआ तो वो बाद में नहीं होगा, ऐसा आयुर्वेद में कहाँ पे आया है क्या. सो राम मनोहर जी का कथन था कि ऐसा स्पेसिफिक तो पढ़ने में नहीं है, किंतु सातवें का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और सातवें को हमने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है जितना हमने बाकी चीजों को एक्सप्लोर किया है. तो ये सातवें हो जाना, एक बार डिसीज सीवियर हो गया तो अगली बार सीवियर नहीं होगा, ये भले ही मेमोरी एज सच आयुर्वेद में उल्लेखित ना हो लेकिन सातवें एक रिलेवेंट कंसिडरेशन है आयुर्वेद का. एंड innate immune mechanism is found in nearly all forms of life, जबकि adaptive is evolution के बाद आया है, only जो vertebrates में है. फिर जो adaptive immune mechanism है मतलब कि antigen specific, उसके further types किए हैं उन्होंने कि cell mediated and humoral. So cell mediated में B lymphocytes हैं, they will lead to destruction of pathogen by producing antibodies. They are rapid and quick. इसमें भी T lymphocytes and macrophages, ये मेनली एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगे. सो जो हम आजकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, हमने अभी एक रिसेंटली न्यूज पढ़ी कि कैंसर पूरा क्योर हो गया वगैरह, सो वो भी न्यूज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की थी. कोविड में भी यूएस वगैरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज किया गया. सो एंटीबॉडीज को सीक्रेट करना सेल मेडिएटेड कहलाता है. इसका बेसिक काम है कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज and then producing antibodies against all those extracellular pathogens. और ये ग्राफ्ट रिएक्शन के अर्ली स्टेज में देखा जाता है, जबकि जो ह्यूमरल एंटी इम्यूनिटी है वो टी लिम्फोसाइट्स इससे ज्यादा रिलेटेड है. इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन दैट हैज इन्वेडेड द सेल, सो इंट्रासेलुलर पैथोजन को किल करने के लिए ये है. एंड टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सभी काम में आ रहे हैं. ये सीक्रेट करते हैं साइटोकाइन्स. ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का काम नहीं है, यहाँ पर साइटोकाइन्स का काम है. एंड देन इनका काम है कि वायरस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करो एंड उसका साइटोटॉक्सिक एक्शन बट फॉर इंट्रासेलुलर पैथोजेंस. एंड दिस सीन्स एक्टिवेटेड इन रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट. इम्यूनोलॉजी की जहां तक हम लोग फिजियोलॉजी देखते हैं तो एक बहुत बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर होती है TH1 TH2 थ्योरी. सो एक्चुअली क्या है, आज के जमाने में हम लोग मतलब हम लोग लिटरली इंफॉर्मेशन के समंदर में तैर रहे हैं. सो TH1 TH2 के बारे में बहुत सारा लिटरेचर है, आप जरूर पढ़िएगा. लेकिन अगर इसको बेसिक एक समराइज करके अगर कहना है तो TH1 रिस्पॉन्स इज प्रो इन्फ्लेमेटरी,
and Th2 response is anti-inflammatory. So Th1 comes first, Th2 comes later. जब भी कोई भी स्ट्रेसर होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर बर्न हो या फिर कट हो, जो भी है, तो वो स्ट्रेसर के आते ही पहला वाला जो रिस्पॉन्स आएगा वो ऑब्वियसली प्रो इन्फ्लेमेटरी आएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इज इटसेल्फ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. सो प्रो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म ऑब्वियसली पहले आएगा एंड देन इट शुड गो विद इन इट्स लिमिट्स, इट वैनिशेस विद इन इट लिमिट्स. एंड वो जो कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, वो जो बॉडी का सेकंड हाफ है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी करके आता है, दैट इज कॉल्ड एज Th2. Th1 kills cells, जबकि Th2 will not kill cell obviously. And Th1 activates macrophages and उसके द्वारा ये काम करता है, जबकि Th2 will recruit eosinophils and then that will help B cells or Ig production by B cells. ये होके वो काम करेगा. एंड देन साइटोकाइंस, हम लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा IL-6 वगैरह, हम लोग पेशेंट का ये इतना वैल्यू है उतना वैल्यू है वगैरह. सो साइटोकाइंस जो है वो Th1 इनहिबिट हो जाएगा बाय साइटोकाइंस फ्रॉम Th2 which are IL-4, which are IL-10. IL-10 ज्यादातर यूज होता है. एंड यहाँ पर जो है Th2 उसको फिर जो मतलब इनहिबिट किया जाएगा, वो इंटरफेरॉन्स सिक्रेटेड बाय Th1, उससे Th2 को ये किया जाएगा. सो समरी या फिर टेक होम मैसेज उसमें से अगर हमको समझना है, तो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में अपने आप में एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट है, एंड दोनों का बैलेंस चाहिए होता है जब हम किसी भी स्ट्रेसर के साथ डील करते हैं उसके लिए. Th1 Th2 balance. Th1, this will stimulate cytotoxic T cells, and these are very autoimmune disorder specific भी होते हैं. Acute infection में ये चीजें देखी जाती है. या फिर Th2 जो रिस्पॉन्स है, that helps in B cells का differentiation. एंड Th2 रिस्पॉन्स हमको मिलता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ तो वो ये है मतलब जिसको बॉडी हो सकता है निकाल दे, तो वो निकालने वाला स्टिमुलस हमको नहीं चाहिए. कुछ तो एक्सटर्नल नहीं कहेंगे उसको, शल्य को वो मतलब व्यतीत काल होने के बाद ही आयुर्वेद ने भी गर्भ को शल्य रूप कहा है. सो जब तक वो अपने काल में है तब तक तो वो बॉडी का ही पार्ट है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाली मैकेनिज्म एक्टिवेट ना हो, इसके लिए Th2 वहां पर एक्टिवेटेड रहेगा प्रेगनेंसी में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सिस्टमिक में, एंड क्रॉनिक एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में, एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में. सो Th1 Th2 का बैलेंस अपने आप में देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर. कुछ मुझे जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी मेंशन करने लायक. सो प्रेगनेंसी एंड अर्ली पोस्टनेटल लाइफ बोथ आर chiefly Th2 phenomenons. या फिर fetus can switch on an immune response early in the pregnancy because pregnancy is a primarily Th2, and babies tend to born with Th2 biased immune responses, and this can be switched off rapidly postnatally under the influence of microbiological exposure, or can be enhanced by early exposure to allergens. And that is why अभी कुछ evidence भी है उसके लिए, अब तक भले पूरा ना हो, लेकिन वजाइनल डिलीवरी, व्हाई वजाइनल डिलीवरी इज गुड, क्योंकि वही है कि माइक्रोबायोलॉजिकल जो एक्सपोजर है वो उसका जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना अच्छा है. या फिर कोविड में हम लोगों ने देखा डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर डेथ क्यों हो गए, क्योंकि अगेन वही है कि लेस एक्सपोजर टू इम्यून एंटीजेंस, लेस एक्सपोजर, एल्डरली पॉपुलेशन इन डेवलप्ड नेशंस का ही ज्यादातर डेथ हुआ कोविड में. तो उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि इन्फेक्टिव एंटीजेंस का बहुत ही कम एक्सपोजर, एकदम हाइजीन हर चीज हाइजीनिक. दैट्स व्हाई Th1 immunity is reduced, Th1 response is reduced. Then there are evidences कि malnutrition, overcrowding, vitamin D deficiency, these are all also known to induce Th2, which in turn downregulate the available Th1.
एंड देन कोविड की अगेन जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि कोविड-19 अफेक्टेड कंट्रीज हैव रोबस्ट एंड फ्री इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिससे हो सकता है उनकी नेचुरल फ्लू इन्फेक्शन के साथ लड़ने का क्षमता कम हो चुका हो. सो ये फ्लू शॉट वाला कल्चर जो है कनाडा में है, यूएस में है, वहां पर कोविड के ज्यादा डेथ्स हुए अपने यहाँ से. सो इट इज ऑल अबाउट कि TH1 TH2 का बैलेंस एंड देयर आर सो मेनी साइटोकाइन्स कि जो इसमें रोल प्ले करते हैं. TH1 TH2 की बात चल रही है तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज द बेसिस फॉर ऑटोइम्यूनिटी कि T इफेक्टर सेल्स वर्सेस T रेगुलेटरी सेल्स. Regulatory T cells often they are written like T reg, and so they play a very important role in maintaining homeostasis by preventing autoimmunity and moderating inflammation and minimizing collateral damage to tissue. The primary function of T regulatory cells is to inhibit the function of antigen presenting cells and T effector cells. सो या फिर इसमें एक और चीज ये भी है नीचे वाली कि रेगुलेटरी टी सेल्स, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सब पॉपुलेशन ऑफ टी सेल्स की जो सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स एंड देयरबाय मेंटेन होमोस्टैसिस एंड सेल्फ टॉलरेंस. सो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने वाले ये टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं. कोविड में हम लोगों ने देखा कि कोविड में क्या है, सबसे पहले वो वायरस आया, तो वायरस आने के बाद सभी प्रो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म शुरू हुआ. And then immune response dysregulation is the key. And then कुछ लोग ऐसे थे कि जिसमें ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वही कंटिन्यू रह रहा है. एक्चुअली प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स 3-4 दिन रहना चाहिए, एंड एक बार वो वायरस के साथ डील कर लिया, वायरल पार्टिकल्स को मिनिमाइज करने के लिए जो भी इनेट एडाप्टिव जो भी इम्यूनिटी है उसने काम करना है वो कर लिया, तो 4 दिन बाद वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म शुरू होना चाहिए टी रेगुलेटरी का. वो कुछ इंडिविजुअल्स में नहीं हो रहा था, एंड दे वर लीडिंग टू ARDS और वाइटल ऑर्गन इंजुरी और किडनी फेलियर बिकॉज ऑफ सिस्टेमिक ऑर्गन्स का इन्फ्लेमेशन. सो हमको मतलब जब हम कहते हैं कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, पर्टिकुलरली इन सोशल मीडिया, क्योंकि हम सभी आयुर्वेदिक फिजिशियन सोशल मीडिया का यूज करते हैं, एंड देन जब हम लोग मॉडर्न टर्म्स यूज करते हैं तो वी शुड बी लिटिल कॉशियस, क्योंकि इवन इन कोविड टाइम्स आई हैव सीन कमेंट्स लाइक कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, वाह बहुत अच्छे, आप लोग तो और वो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा दोगे. सो ऐसा नहीं है शतावरी, इन दैट सेंस वो तो इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस करने वाली चीज है, क्योंकि वो अपने आप में मतलब उसका रोल एंटी इन्फ्लेमेटरी ज्यादा है. सो देयर इज नथिंग लाइक कि इम्यूनिटी बढ़ानी है या कम करनी है, इट्स जस्ट इम्यूनोमोड्यूलेशन एंड इम्यून होम्योस्टैसिस अचीव करने वाली चीज है. सो टी रेगुलेटरी सेल्स का ये इंपॉर्टेंट काम है कि टू सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स. टी इफेक्टर सेल ने जो रिस्पॉन्स दिया है प्रो इन्फ्लेमेटरी, उसको आप इनहिबिट करो एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म आप इग्निट करो. ये टी रेगुलेटरी सेल्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम है. एंड ये दोनों जो है, ये दोनों मैकेनिज्म्स जब अपने आप में अच्छा सा काम करेंगे तब हमको वो पर्सन हो सकता है. हम लोगों ने देखा कोविड में कुछ लोग थे कि दे वर इनफ लकी की 14 दिन की छुट्टी मिली है, 4 दिन में ठीक हो गए, हफ्ता भर अब क्या करना है, चलो इसका सीजन सेकंड 2 सीजन खत्म करना है, उसका सीजन 2 खत्म करना बाकी है. सब कुछ वो काम लोगों ने निपटा लिए, क्योंकि अकेले बैठे थे तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे जो देखना बाकी था देख लिया लोगों ने. सो ये ऐसा क्यों? क्योंकि इम्यून होम्योस्टैसिस इज देयर, प्रो एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी का बैलेंस है, दैट्स व्हाई. Cytokine is another important word. So cyto is cell, kine is movement. This is again very basic. Lot of literature is available everywhere. Cytokines are just signaling molecules कि जो cell to cell जो भी communication करना होगा immune mechanism में, उसमें काम में आने वाले ये messengers हैं. So cell की movement करनी है towards site of inflammation और ट्रामा और इन्फेक्शन व्हाटएवर, तो ये सब कुछ करने के लिए जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर पेप्टाइड्स, दे आर प्रोटीन्स, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ये सभी वो है. एंड साइटोकाइन्स आर नॉट हार्मोन्स. सो हार्मोन्स अलग होते हैं
दोनों एक पाइकोमोलर एक नैनोमोलर कंसेंट्रेशंस में काम करते हैं। उसमें डिफरेंसेस में चले जाएंगे तो वो बहुत अगेन डिटेल विषय है। So these are just immunomodulating agents और those are able to modulate immune response, क्योंकि वही मैसेंजर है और वो जो मैसेंजर क्या मैसेज देगा उसी पे तो आगे का रिस्पॉन्स काम करेगा। So हम लोगों ने व्हाट आर साइटोकाइन्स देख लिया। नाउ मूविंग अहेड इज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये एक फिजियोलॉजी, जहाँ तक इम्यूनोलॉजी की फिजियोलॉजी है, इसका ये एक बहुत ही बेसिक चीज है। फर्स्ट एक्सपोजर, देन वो मेमोरी किस तरीके से एक इनिशियल रिस्पॉन्स, देन एक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आ गई एंड देन उसके बाद में मेमोरी का पीक हमको दिखाई दे रहा है। सो मेमोरी के टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ये एक बहुत बड़ा विषय है जो कि वैक्सीनेशन का बेसिस फॉर्म करता है। सो एक्चुअली वी आयुर्वेद में बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता, इन सभी चीजों पे we have a lot of things कि जो प्रूवन है कि ये बुद्धि के लिए है, मेमोरी के लिए है। So I guess this can be good hypothesis if somebody has to explore कि क्या हमारे रसायन द्रव्य है वो एडेप्टिव इम्यून मैकेनिज्म में भी मतलब वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं क्या। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोग गुड़ची इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत सारे लोग यष्टि इस्तेमाल कर रहे थे एंड इवन न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ रहा था कि गुड़ची इतनी बिकी उतनी बिकी। एवरी टाइम में पढ़ता था, दैट टाइम हर बार मुझे याद आता था कि चरक ने जो 4 मिद्य रसायन बोले हैं उसमें है ब्राह्मी, मंडूक पर्णी, देन क्षीरण गुड़ची, क्षीर के साथ गुड़ची इस्तेमाल करिए एंड यष्टि मधु। सो आई वाज लाइक कि मतलब चलो ये यष्टि मधु और गुड़ची यूज कर रहे हैं लोग तो वो तो इम्यूनोमोडुलेटरी काम तो कर ही देगा, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लिया है एंड ये लिया है या फिर किसी को डिसीज हो चुका है एंड उसने यष्टि और गुड़ची का सेवन किया तो क्या उसके इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी लॉन्ग रहेगी? ऐसा कुछ अगर मतलब काम हो सकता है। एक्चुअली हम सभी लोगों की समस्या यही है कि वी आर एबल टू जनरेट सो मेनी गुड आइडियाज, लेकिन ये सब कुछ इम्प्लिमेंट करने के लिए काळ, काम, वेग, गणित, त्याचे काही आपण गणित लहानपणी करायचो, सो त्यासाठी लागणारा वेळ, त्यासाठी लागणारा पैसा, त्यासाठी लागणारा माणूस, इथं त्या गोष्टी थांबतात. बट स्टिल दिस कॅन बी अ गुड हायपोथेसिस. सो इम्युनॉलॉजिकल मेमरी इज अन इम्पॉर्टंट कंपोनेंट. सो दिस इज अबाउट बेसिक ऑफ इम्युनिटी, दिस इज अबाउट वेरी बेसिक ऑफ इम्यून फिजियोलॉजी. एंड देन सवाल आता है कि अब ये जो इम्यूनिटी है इसको आप आयुर्वेद में क्या कहेंगे? पढ़ लिया सब कुछ, वो मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, ये है वो सब कुछ. अब आप क्या करेंगे? एक वैद्य क्या करेगा इससे? तो देर आर ब्लड सेल्स, देर आर लिम्फेटिक्स, देर इज लिवर एंड स्प्लीन, देर इज बोन मैरो एंड देन देर इज थाइमस एंड देन देर इज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. ये सब कुछ पढ़ लिया तो अब आयुर्वेद में क्या करेंगे? तो ब्लड सेल्स मतलब रक्त, लिम्फेटिक्स मतलब रस, लिवर एंड स्प्लीन बोले तो रक्त व स्रोत का मूल स्थान, बोन मैरो मतलब मज्जा एंड थाइमस मतलब अवलंबक कफ. सो इस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो हम इम्यूनिटी का अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही हम रिड्यूस कर देंगे. एक्चुअली सभी प्रैक्टिशनर्स ही है, ये मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, ये बताने की शायद आवश्यकता ना हो, लेकिन हम सभी प्रैक्टिशनर है और हम सभी ये जानते हैं कि आयुर्वेद, हम सभी आयुर्वेद के ज्ञाता है, अभ्यासक है. तो आयुर्वेद की कोई भी चीज हो तो या मॉडर्न की कोई भी चीज हो तो देयर कैन नॉट बी 1:1 कोरिलेशन. जब भी मैं यूजी वाले सेमिनार में चला जाता हूँ, ये तो खैर प्रैक्टिशनर्स का है, लेकिन मैं एक स्लाइड जरूर बना लेता हूँ कि जिसमें एक और तेंदुलकर होता है और दूसरी ओर गांगुली, विराट कोहली और व्हाटएवर सौरव दादा, and then यहाँ पे विराट कोहली एंड राइट में और लेफ्ट में सचिन तेंदुलकर. एंड आई टेल द यूजी क्राउड कि देखिए, आपको अगर मुझे कहना है कि विराट मतलब क्या, अभी आजकल जो विराट खेल रहा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यस, विराट यानी हमारे जमाने का तेंदुलकर. सो ऐसा आप समझ लो तो आप समझ जाओगे. तो दिस इज वेरी लीनियर कोरिलेशन, ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा कि विराट कोहली इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर एक थोड़ा सा कफ प्रधान था, उसकी इसमें थोड़ी सी शान थी, वो एकदम बिल्कुल आराम से चलने वाला पर्सन था. विराट में वैसा नहीं है, विराट में एग्रेशन भी है,
तो वो इट कैन बी सो बेटर आई शुड टेल यू लाइक कि विराट कोहली इज इक्वल टू सौरव दादा का थोड़ा सा एग्रेशन, तेंदुलकर का ये क्लास प्लस इसका ये तीनों को जब तुम कॉकटेल कर दोगे तो बनेगा ही है। सो आयुर्वेद की एंड मॉडर्न की कोई भी चीज को हम लोग लीनियर पक्का नहीं जा सकते। सो ये एलिमेंट्स है इम्यूनिटी के, तो ये वाला रक्त रस मज्जा ये हो गया आयुर्वेद का इम्यूनिटी, ऐसा नहीं होगा। ना ही वैदिक क्षमत्व इज इक्वल टू इम्यूनिटी। मतलब ये वैदिक क्षमत्व का विषय आया है, महर्षि चरक ने खुद बताया है, वो अन्न स्वरूप का वो जो चैप्टर चल रहा है मतलब चतुष्क में, उसमें अग्निवेश जी पूछते हैं कि भाई हम लोग तो देखते हैं कुछ को बीमार होते हैं कुछ को बीमार नहीं होते, अन्न का विषय चल रहा है, अन्न का सेवन करने के बावजूद, उचित अन्न का सेवन करने के बावजूद, तो वो वहां पे आंसर यह है कि व्याधि क्षमत्व है, एंड देन व्याधि बल प्रतिबंधकत्व नीति वगैरह वगैरह श्लोक हम लोगों ने अपने बीएमएस के लाइफ में याद किया है वगैरह वगैरह। सो क्या है, एक फैलेसी होती है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन, हम चीजों को बहुत आसान कर देते हैं। सो ओवर सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारी समस्याएं होती है, और लोगों को ओवर सिंप्लीफिकेशन अच्छा भी लगता है। चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करके एक व्हाट्सएप मैसेज या एक व्हाट्सएप पिक्टोरियल कुछ चीज बनाई जा सकती है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है। जब आप उसको पढ़ने जाते हो तो समझ में आता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है। सो ओवर सिंप्लीफिकेशन यानी कि आयुर्वेद में क्या है, वैदिक क्षमत्व हो गया, ऐसा हमें नहीं करना होगा। हमको इम्यूनिटी समझने के लिए इम्यून फिजियोलॉजी, इम्यून पैथोलॉजी, इम्यूनिटी के डिसीजेस, एंड दिस इज रियली अ वेरी गुड यूनिक सीरीज चिन्मय जी हैज अरेंज्ड, एंड दिस इज रियली अ वेरी गुड एंड नीड ऑफ टाइम कि हम सभी जो भी अवेलेबल पर्सन्स हैं इस पे काम करने वाले, उनको इकट्ठा करें ताकि हम इसका कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग बना सके कि व्हाट इज इम्यून मैकेनिज्म। क्योंकि देखिए ये मतलब बेहता है विद्यते आने ना, चरक जी ने कहा है चीजों का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। सो इम्यून सिस्टम ये उन्होंने किया हुआ क्लासिफिकेशन है, तो हमारे इसमें देखेंगे तो इसमें दोष भी आएगा, धातु भी आएगा, अग्नि भी आएगा, धातुओं का पाक भी हो रहा है। तो ये बहुत ही हमको बहुत मतलब नीटली करने वाली चीज होगी। एंड यहाँ पे हमको ध्यान में रखना होगा कि स्ट्रक्चर फंक्शन, आयुर्वेद में हर चीज स्ट्रक्चर ओरिएंटेड नहीं बताई होगी। बल यानी इम्यूनिटी, तो बल आयुर्वेद में मज्जा का भी कर्म है, शुक्र का भी कर्म है, बल वृद्धि का भाव भी है। एंड सिर्फ बल कह के हम उससे छोड़ नहीं दे सकते। हमको इम्यून रिस्पॉन्स होता कहाँ है, कटने में होता है, जलने में होता है, तो हमको सुश्रुत का व्रण चैप्टर भी खोलना होगा आयुर्वेद की इम्यूनिटी समझने के लिए। अगर फीवर इटसेल्फ इज हॉलमार्क ऑफ इन्फेक्शन, तो हमको ज्वर देखना पड़ेगा, और इसमें धातु पाक अगर हम लोग को देखने को मिल रहा है, आवरण देखने को मिल रहा है, तो हमको ज्वर से लेकर वात रक्त तक हमको जाना होगा। सो हमको आयुर्वेद में जब हम चीजें देखने का प्रयास करेंगे तो फंक्शन या कर्म स्पेसिफिक देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको हर स्ट्रक्चर का वर्णन नहीं मिलेगा, ये एक बेसिक अप्रोच लेके हमको आयुर्वेद की पैथोफिजियोलॉजी समझने का प्रयास करना होगा। ऑटोइम्यून डिसीजेस, यस देयर आर 100 ऑटोइम्यून डिसीजेस, हम सभी जानते हैं। सिम्टम्स कैन इंक्लूड पेन, टायर्डनेस, फटिग एक बहुत अपने में बड़ा विषय है। आयुर्वेद ने भी श्रम और क्लम, एक में श्वास वर्जित है, एक में श्वास सहित है, ऐसी दो स्पेसिफिक संज्ञाएं दी है। सो फटिग इज अ वेरी मतलब CRF, कैंसर रिलेटेड फटिग पे बहुत सारा लिटरेचर है। श्रम असं म्हटल्यानंतर आपण थोडंसं कॅज्युअली घेतो, बट दॅट इज रियली वेरी बिग सिम्टम। पेन, रैशेस, नॉसिया, हेडेक, डिजीनेस, एंड देन स्पेसिफिक सिम्टम जो भी कौन सा टिश्यू या किस ऑर्गन को अफेक्ट किया है उस हिसाब से आएंगे। कौन कौन से ऑटोइम्यून डिसीजेस है, तो सोराइटिक आर्थ्रोपैथी, सोराइटिक आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीज, देन SLE, ल्यूपस, स्टेटस लूपस एरिथ्रेमेटस, ये जॉइंट कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल से रिलेटेड हो गए। GI ट्रैक में कॉन्स डिसीज, सीलिएक डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो आगे एक्सपर्ट्स एक एक केस सीरीज हम लोगों ने इंडेक्स ने किए हैं, तो एक एक केस भी आएगी, तो उसमें ये सब कुछ वो वहाँ की पैथोलॉजी एंड मेडिसिन रखेंगे। देन एंडोक्राइन सिस्टम में ग्रेव्स डिसीज, हशीमोटो, एडिसन्स डिसीज। स्किन में देखेंगे तो डर्मेटोमायोसाइटिस, सोरियासिस।
नर्वस सिस्टम में एक CIPD है, GB सिंड्रोम है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एंड ये छोड़ के माइस्थेनिया ग्रेविस है, ऑटोइम्यून वास्कुलाइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, पर्निशियस एनीमिया है. सो बेसिकली नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, स्किन है, एंड कनेक्टिव टिश्यू भी है, एंड GIT भी है. दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को आयुर्वेद में इसका क्यूमुलेटिव अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत डिफिकल्ट है. एक एक चीज का अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. कॉज डिसीज उसको ग्रैनी के साथ जोड़ दिया, सोरेटिक आर्थ्रोपैथी उसको कुछ धातु के कुष्ठ के साथ जोड़ दिया, वगैरह वगैरह. लेकिन एक क्यूमुलेटिव अंडरस्टैंडिंग अगर देखने को जाए तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसीजेस है जिसमें जॉइंट्स एंड मसल्स है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के भी कुछ डिसऑर्डर्स है, कुछ एंडोक्राइन के हैं, कुछ स्किन के हैं, कुछ नर्वस सिस्टम के हैं. तो ये सब कुछ समझ के हमको रखना होगा एक ऑटोइम्यून डिसीजेस का अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि मैं तो कह दूंगा कि यस इसमें पित्त प्रदान है, इसमें रक्त दुष्टि है, वो तो है, लेकिन फिर भी इसमें और कॉमन क्या है स्पेसिफिकली, ये जब तक समझ में नहीं आता तब तक हमको ऑटोइम्यूनिटी का आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी तो समझ में नहीं आएगा. और जहाँ तक मॉडर्न फिजियोलॉजी की बात है, बहुत सारा लिटरेचर है, हम लोग उसका बेसिक पार्ट देख रहे हैं. सो दिस वर द लिस्ट ऑफ मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. नाउ एंटीजन एंटीबॉडी, व्हाट आर दे बेसिकली? सो एंटीजन इज एनी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फॉरेन पार्टिकल मैटर, व्हाटएवर, pollen grain, whatever for that matter, which can have ability to bind to specific antibody. This is very important. And the presence of antigen शब्द ही है, gen का anti. So the presence of antigen in the body will trigger the immune response, and antigens can be proteins, peptides, polysaccharides, monosaccharides, simple sugars or lipids or nucleic acid, whatever. एंटीबॉडी, यहाँ पे मैंने इमेज रखना रह गया, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में PPT बनाया था, लेकिन वो टिपिकल वाई शेप्ड इमेज आप लोगों ने जब भी एंटीबॉडी एंटीजन गूगल करते हैं तो वो सबसे पहले आ जाती है. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन्स, IgG, IgM, IgE, सब कुछ हम लोग उसका डिटेल आगे पैथोलॉजी वाले लेक्चर में भी देखेंगे. सो इम्यूनोग्लोबिन इज अ लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन यूज्ड बाय इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई and neutralize the foreign body objects. So that can be bacteria or viruses, whatever. So the antibody recognizes unique molecule in the pathogen, and that itself is nothing but antigen. So this is the basic thing. Lymphocytic system में क्या क्या basically है? So ये lymphoid ही है, जिसमें नीचे अगर देखेंगे तो substances, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर इसमें है कि T सेल है, B सेल है, NK सेल है, एंड दिस जस्ट टर्म्स यहाँ पे सभी कंपाइल किए हैं कि एंटीजेंस. सो एंटीजेंस में सुपर एंटीजेंस है, एलर्जेंस है, हैप्टेंस है, फिर उसके इपिटोप्स, उसके बहुत सारे टाइप्स वगैरह भी है. देन एंटीजन का प्रेजेंटेशन करने वाले सेल्स होते हैं, वो आएंगे, मैक्रोफेजेस, B सेल आएंगे, इम्यूनोजेन आएंगे. सो ये पूरा ग्रुप, ये सभी परिभाषा यूज होती है, एंटीजन से रिलेटेड परिभाषा है. फिर एंटीबॉडी में एक्चुअली एंटीबॉडी मोनोक्लोनल हो सकती है, पॉलीक्लोनल हो सकती है, ऑटो एंटीबॉडी हो सकती है, एलोटाइप, आइसोटाइप, इडियोटाइप, इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये सभी पैराटोप, ये इसके अगेन बहुत सारे डिटेल्स है इम्यूनोलॉजी में. एंड एक्शंस, सो इम्यूनिटी वर्सेस टॉलरेंस. सो एक्शन क्या है? इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, एलो इम्यूनिटी, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, इन्फ्लेमेशन, क्रॉस रिएक्टिविटी, को स्टिमुलेशन, ये सब कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी टर्म्स थे. और फिर उसके आगे क्या है? टॉलरेंस. अब ये टॉलरेंस सेंट्रल भी हो सकता है, पेरिफेरल हो सकता है. फिर टॉलरेंस के भी बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारा लिटरेचर उसके लिए अवेलेबल है. टॉलरेंस इन प्रेगनेंसी इज वेरी फेमस. इम्यूनोडेफिशिएंसी इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म. HIV में हम लोग देखते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी करने वाला वायरस. एंड इम्यून प्रिविलेज, एंड देन इम्यूनोजेनेटिक्स. सो ये जेनेटिक्स का भी विषय है, क्योंकि
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जब हम लोग देखने वाले हैं तो उसका बेसिक्स यही है कि ये फॉर्म होने में दोनों कंपोनेंट्स है, एक है जेनेटिकली या एपिजेनेटिकली प्रोननेस एंड देन है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो दैट इज हाउ द टर्म्स आर देयर. एंड नाउ पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस जो है, तो इसमें जो है कि इम्यून रिस्पॉन्स मस्ट बी रेगुलेटेड टू प्रिवेंट ओवरवेलमिंग डैमेज टू द होस्ट. सो डैमेज हो सकता है एनाफाइलैक्सिस से, साइटोकाइन स्टॉर्म से. साइटोकाइन स्टॉर्म शब्द हमने कोविड के टाइम पे बहुत सारा सुना. टिश्यू डिस्ट्रक्शन या फिर उसको साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम भी कहते हैं. सो ये इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है एंड वो काम है टी रेगुलेटरी सेल्स का. सो इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइंस लाइक IL-10, मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि शतावरी इज इम्यूनोसप्रेसेंट. तो इसका मतलब शतावरी बल कम करने वाली है ऐसा नहीं है. शतावरी इज इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइंस को वो बढ़ावा देती है एंड एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट ला देती है. सो उस हिसाब से रेगुलेशन करना टी रेगुलेटरी का काम है. एंड ये जब वो नहीं कर पाता तब हर चीजें शुरू हो जाती है. सो द इम्यून रिस्पॉन्स रिजॉल्व्स व्हेन द एंटीजन इज eliminated from the body. Without stimulation by antigen, cytokine secretion ceases and activated cytotoxic T cells undergo apoptosis. तो वो जो कोविड के लोग जो 4 दिन में अपने आप में ठीक होते हैं, उनमें क्या होता है? Once the antigen is eliminated, immune response itself gets resolved. Without stimulation of antigen, cytokine का जो भी secretion था वो अपने आप में cease हो जाता है. And activated cytotoxic T cells undergo apoptosis. वो जो T cells एक्टिवेट हो चुकी थी साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी वाली, वो अपने आप में खुद ही apoptosis में अंडरगो हो जाती है. एंड देन वो टी रेगुलेटरी का मैकेनिज्म प्रॉपर हो गया. एंड देन फिर वो apoptosis tags the cells for immediate phagocytosis. एंड देन उसके बाद में T and B have further differentiated into memory cells for the spread of the this fate. तो इस हिसाब से रिजॉल्व भी हो जाता है इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब तक शरीर में इम्यून मैकेनिज्म बैलेंस्ड है तब तक. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक टर्म बस देखते हैं हम लोग, फिर आगे डिसीजेस की ओर देखेंगे, डिसीजेस के बेसिक्स. HLA, ये HLA-27 हम लोग टेस्ट करते हैं. देन ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट का वैसे एक पैथोलॉजी का सेपरेट लेक्चर है. CBC इज एन इम्पोर्टेंट थिंग एंड ESR वैसे जल्दी नहीं आता, वो कुछ दिनों बाद आता है. HLA, what is HLA? HLA is human leukocyte antigen. So this is a type of molecule that is found on almost all most cells in the body, and this is very specific. A person's tissue type that will vary from person to person, and that's why this thing needs to be matched with the organ transplant के टाइम पर वो मैच करने की आवश्यकता होती है. सो ये डिफरेंट HLAs है. सोरेसिस में कौन सा है, रोमेटॉइड में कौन सा है. HLA-B27 हम सभी को ज्यादा फेमस है, तो दैट इज इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड आर्थराइटिस में है. सो नाउ दिस इज HLA अपने आप में सिस्टम है. HLA system, and that is important part in immune system, and that is controlled by the genes located on chromosome 6. So ये बहुत अपने आप में इसका बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, जितना हम लोग जाएंगे उतना ये होगा. Now let us move to the mechanism of human autoimmunity. So autoimmune reactions जो है वो बेसिकली हमने देखा कि इफेक्टर एंड रेगुलेटर इन दोनों के रिस्पॉन्स से रिलेटेड है. सो इसमें टिपिकली फेजेस जो है वो इनिशिएशन है, प्रोग्रेशन है एंड देन रिजोल्यूशन है. रिजोल्यूशन यानी कि क्लिनिकली सबसाइड हो गए सिम्टम, तो हम लोग समझ गए. सो द फंडामेंटल अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ ऑटोइम्यूनिटी इज डिफेक्टिव इलिमिनेशन. वो जो इलिमिनेशन था कि अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, वो टी रेगुलेटरी सेल्स आने वाली जो भी काम करने वाली थी वो काम ढंग से ना होना, दैट इज द बेसिस ऑफ ऑटोइम्यूनिटी. And there are studies in human or even in animal models कि genetic and environmental factors है, and इसका की जो factor है, मतलब फिजियोलॉजी एग्जैक्टली कहाँ पर बदलती है, तो टी रेगुलेटरी मैकेनिज्म ढंग से काम नहीं करता, and that leads to
complications or that leads to autoimmunity. So भले ही organ के हिसाब से and टिश्यू के हिसाब से अलग अलग इम्यून डिसीजेस है, तो टाइप्स तो बदलेंगे, लेकिन हर ऑटोइम्यून डिसीज का ये एक टिपिकल पैटर्न होता है. तो वो पैटर्न ये है कि एक एक्सिस पे टाइम है, एक एक्सिस पे डिसीज की सीविरिटी है, उसमें भी पहला जो हिस्सा है वो सब क्लिनिकल है एंड आगे का हिस्सा क्लिनिकल है. सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सो इनिशिएशन, फेज ऑफ इनिशिएशन, फेज ऑफ प्रोपोगेशन एंड फेज ऑफ रिजोल्यूशन. सो इनिशिएशन होने में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड सेकंड इज एनवायरमेंटल ट्रिगर्स. सो ये ट्रिगर्स है, वो पोलन ग्रेन्स है, ये है, वो है, व्हाटएवर, क्रॉनिक इन्फेक्शंस है, एंड देन पर्टिकुलर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है. तो इससे वो सब क्लिनिकल कंडीशन में वो चल रहा है, लेकिन जब तक सिम्टम नहीं आएंगे उसको पता नहीं चलेगा. एंड देन वो प्रोपोगेशन की फेज में जाएगा, क्योंकि अब साइटोकाइन प्रोडक्शन बढ़ चुका है, इपिटोप्स स्प्रेड हो चुके हैं, एंटी इफेक्टर एंटी रेगुलेटरी का बैलेंस चला गया है, एंड नाउ देयर इज इन्फ्लेमेशन, मेड बी इन स्किन, मेड बी इन जॉइंट्स, मेड बी इन कनेक्टिव टिश्यू, वेयरएवर. एंड देन उसके बाद में एक रेजोल्यूशन की भी फेज अपने आप कितने सारे डिसीज में आ जाती है, क्योंकि ये सभी डिसीज ज्यादातर एपिसोडिक है. मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रोमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक है तो वो पेन कंटिन्यूअसली 10 दिन से चल रहा है, वो एक 2-3 दिन बहुत एग्रीवेट होता है पेन, ऐसा वीकली वंस होता है. दैट इज हाउ पेशेंट रिस्पॉन्ड्स. तो रिजोल्यूशन की भी फेज अपने आप में उस डिसीज में देखी जाती है. Autoimmunity is initiated by combination of genetic predisposition and environmental triggers. So पहली तो फेज सब क्लिनिकल है, लेकिन फिर साइटोकाइन प्रोडक्शन बढ़ गया, टी इफेक्टर टी रेगुलेटरी का बैलेंस चला गया, एंड देन डिसीज प्रेजेंटेशन हुआ, एंड देन रिजोल्यूशन की भी फेज आ गई. मैकेनिज्म की जहां तक बात है, तो ये जो ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स है, जहां पे हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वो समझा जा सकता है HLA से, एंड एनवायरमेंटल ट्रिगर्स में क्या है, ट्रॉमा है, इंसल्ट है, माइक्रोबियम है, एंड इन्फेक्शन है. सो दैट इज द एनवायरमेंटल ट्रिगर्स. एंड डिफेक्टिव रेगुलेशन, टी रेगुलेटरी का डिफेक्टिव चीजें हैं, ये तीनों जब इकट्ठा आ जाते हैं तो वो टी सेल्स ऑटो रिएक्टिव हो गई और उन्होंने खुद के ही सेल की टिश्यू इंजुरी कर दी. मैंने एक्चुअली ये लेक्चर देने के पहले ना कि देखिए, दिस एट द क्रक्स ऑफ इम्यून ऑटोइम्यूनिटी. ऑटोइम्यूनिटी में क्या है कि बंदा खुद को ही मार रहा है. ओके, सो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में वो समझ नहीं रहा है. इसमें मैं आगे भी एक कमेंट करूंगा, इंपॉर्टेंट कमेंट होगी वो, कि इट्स नॉट ओनली सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बट हार्मफुल एंड नॉन हार्मफुल. तो वो हार्मफुल या नॉन हार्मफुल है ये समझ नहीं रहा है, एंड वो अपने खुद के ही टिश्यू को इंजुरी कर रहा है. सो ये खुद के टिश्यू को इंजुरी करना, ये किस दोष में देखा जा सकता है? इसलिए मैंने दोषों के फंक्शंस वगैरह फिर से आज सुबह ही देख लिए, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं. लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये पित्त का तीक्ष्ण गुण या फिर बुद्धि विकृत हो जाना, ये दो ही चीजों से हम कहीं ना कहीं उसको ले पाएंगे. देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम इसका आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग क्या कर सकते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी, खुद के टिश्यू को इन्फ्लेमेशन करके मारना. सो इसमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, HLA हमने देखा, मैंने इमेज के टाइम पर ही ये सभी चीजें कह दी. T regulatory functions to suppress autoreactive T cells, but defects in development, stability and function may render these cells dysfunctional and unable to control autoreactive T cell responses. Alone or in combination, these factors can contribute to escape, activation and proliferation of autoreactive lymphocytes. So ये important चीज है. Now infection as a trigger, तो ये मैंने जरूर, मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए, इसलिए मैंने ये जरूर एक पेपर से उठा के रखा हूँ यहाँ पर
कि infections have been long suspected to trigger autoimmunity. Multiple theories have कि multiple theories have been proposed to explain this association, including ये वाला कि एपिटोम स्प्रेडिंग वगैरह वगैरह वगैरह. इसमें इंपॉर्टेंट चीज मुझे एक थी कि ईबीवी इन्फेक्शन उन्होंने पोस्टमार्टम के ब्रेन टिश्यूज में मिला जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले ब्रेन्स थे एंड अदर इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजीज में नहीं मिला. सो ये जो है 17 वाला रेफरेंस, फॉर एग्जांपल evidence of EBV infection in postmortem brain tissues has been associated with multiple sclerosis but not with another brains जो उनको पोस्टमार्टम में मिले जिनमें इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी थी. तो ये बहुत जरूरी इसलिए है समझना क्योंकि या फिर मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे मेडिसिन ज्यादातर इनेट इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं. ऐसा प्रूव होने से भी क्या होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर ये स्पेसिफिक है कि ईबी वायरस से जहां पर ब्रेन अफेक्ट हुआ है उसी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एसोसिएशन दिख रहा है, तो हमको सिर्फ इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी कम करने वाली चीजें या फिर ईबी वायरस स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी कम चीजें करने वाले मेडिसिन डेवलप करने पड़ेंगे. ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो कि अनलेस एंड अनटिल हम पेशेंट्स पे नहीं कहते कुछ कह नहीं पाएंगे. Additionally, systemic infections have been reported to trigger relapse in patients with relapsing or remitting MS. Another example is autoimmunity of periodontal infections and rheumatoid arthritis. So ये भी एक बहुत ही famous example है इसमें. So कौन-कौन से infections as a trigger काम करते हैं ये देखना भी जरूरी होता है. And this is again important, microbiome. There is now a lot of literature available on gut microbiota, and even in gut microbiota there are particular microbiota that is having pro-inflammatory response and that is having anti-inflammatory response, and whatever your gut have, so whatever the gut have उसमें भी जो actually मैंने वो एक दो actually अच्छी images थी लेकिन वो मुझे मिली नहीं तो वो मैं यहाँ पे डाल नहीं सका. लेकिन टी रेगुलेटरी एंड टी इफेक्टर इसका बैलेंस इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद गट माइक्रोबायोटा एंड दैट्स व्हाई ये सभी ऑटो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स में हम लोग अग्नि की चिकित्सा, काय की चिकित्सा कुछ भी ना समझते हुए बस बेसिक लंघन पाचन करने से भी हम लोग इन पेशेंट्स में काफी अच्छे हद तक वैद्य लोग जो रिलीफ दे पाते हैं. उसका एक इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि हम लोग गट माइक्रोबायोटा पे कहीं ना कहीं काम करते हैं. दिस वाज अगेन आई हैव पुट, लेकिन इस चीज के लिए मैंने एक और भी स्लाइड बनाई थी तो मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूँ. यस, बेसिक ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. सो इन्फ्लेमेशन इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. सो इन्फ्लेमेशन अगर इम्पोर्टेंट थिंग है तो उसमें क्या क्या है? उसमें है कि रेडनेस, हीट, पेन एंड एडिमा. लेकिन ये आ कहां से रहे हैं? तो रेडनेस एंड हीट इज कमिंग फ्रॉम इंक्रीज डायमीटर एंड पेन एंड एडिमा दैट इज कमिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड परमेबिलिटी. सो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको वो साइटोकाइन कौन सा है और मॉलिक्यूल कौन सा है वो पढ़ के हम एक वैद्य क्या करेगा, वो डिटेल में जाके एक वैद्य क्या करेगा. वैद्य के काम की अगर कुछ चीज है तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का ये बेसिक समझ ले कि इन्फ्लेमेशन में होता ये है कि इन्फ्लेमेशन में डायमीटर बढ़ता है जिसके कारण वो रेडनेस है एंड हीट है एंड परमेबिलिटी बढ़ती है जिसके कारण पेन है एंड एडिमा है. एंड देन इट इज आवर चैलेंजिंग जॉब कि विंशति गुणों में कौन सा गुण किस फेनोमेनॉन से रिलेटेड है. हीट का संबंध किससे है, रेडनेस का संबंध किससे है, पेन का संबंध किससे है, एडिमा का संबंध किससे है. तो ये कहीं ना कहीं ग्रंथों में तो अनंता डायमीटर कम करेगी या फिर ये वनस्पति परमेबिलिटी बढ़ेगी ऐसा तो नहीं दिया है,
लेकिन हम मतलब मॉडर्न लिटरेचर में देखिए, अभी मैं मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ और आयुर्वेद का प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो जब हम पढ़ने के लिए चले जाते हैं ना पबमेड पे, तो वो तो समंदर है, तो उसमें हम तैरते 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 चले जाते हैं। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, या फिर अपने काम का कौन सा है? तो अपने काम का फिजिकल फेनोमेनन ये है, तो वो विंशति गुण है। तो ये वैद्य ने आई गेस ये एक बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन है। देन दीज आर साइटोकाइंस इन इन्फ्लेमेशन, ये सब कुछ के डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इम्यून सेल्स इन इन्फ्लेमेशन, एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स होती है, इओसिनोफिल्स होती है, एलर्जी में, इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स, जबकि क्रॉनिक में मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। तो इस हिसाब से अगर पूरा इम्यून मैकेनिज्म हमको अगर एक स्लाइड में रखना है, तो हमको ये समझना होगा कि 4 चीजें हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा स्लोली आ रहा है स्लाइड चेंज, मैंने जो स्लाइड चेंज किया है वो आ जाएगा। तो जैसे कि अभी आपके सामने स्लाइड में दिखाई दे रहा है, कोर इम्यून सिस्टम में है इम्यून सेल्स, लिम्फोइड्स, स्प्लीन एंड साइटोकाइन। ये जो है इसका बस आप ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोर इम्यून टिश्यू है। ओके, सो ये रहा कोर इम्यून टिश्यू, लेकिन साथ साथ इसके रिलेशनशिप्स क्या क्या है? इसके रिलेशनशिप्स है इम्यूनो मेटाबॉलिज्म। अब वो क्या है उसमें मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन इम्यूनिटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म। Then you have gut-brain immune axis, and you have gut-brain axis. So gut-brain immune axis is there. So that is how nervous system is closely associated. And neuroendocrino-immuno, that is the new word, PNIE, psychoneuroimmunoendocrinology. So ये एक important चीज है. And then there is one more part, psychological and behavioral immunity. बिहेवियरल कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है इम्यून मैकेनिज्म के लिए। सो भले ही इम्यून टिश्यूज इतने ही हैं, लेकिन इनका संबंध इन सभी सेल्स से, इन सभी सिस्टम से है। एंड जब हम कोई भी ऑटो इम्यूनिटी का पेशेंट, किसी भी टिश्यू का हो, किसी भी ऑर्गन का हो, उसको ट्रीट करते वक्त ये सभी चीजें आएंगी। एंड सेल्फ एंड नॉन सेल्फ नहीं है, बल्कि डेंजर एंड नॉन डेंजर है। सो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कोर जो टिश्यू है वो आयुर्वेद के हिसाब से रस और रक्त है, मुझे लगता है। मज्जा शुक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मेटाबॉलिज्म था, वैसे हमारे आयुर्वेद में अग्नि है। जैसे कि वहां पर ये था ब्रेन गट इम्यून एक्सेस था, वैसे आयुर्वेद में रक्त पित्त मज्जा का एसोसिएशन है। साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी थी, वैसे आयुर्वेद में प्राण है, अग्नि है, धात्वग्नि है और ओज है। एंड बिहेवियरल इम्यून मैकेनिज्म करके वो लोग जो कहते हैं, तो वैसे आयुर्वेद में प्राण का अग्नि का संबंध है। उपनिषदों में, वेदों में प्राण और अग्नि एक दूसरे के साथ बहुत कोरिलेटेड कहे गए हैं। एंड वही मन का प्रेरण करने वाला भी प्राण है। दैट्स व्हाई ये समझना बहुत जरूरी है। एंड नाउ फीवर आई गेस ऑलमोस्ट 1 आवर हुआ है एंड मेरा लगभग आधा है। एक मिनट में स्लाइड्स कितनी है देखता हूँ। स्लाइड्स मेरे 54 है, सो लगभग मैं 60% तक आ चुका हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये जो मॉडर्न या फिर जो डिटेल वाला पार्ट है, वैसे भी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ रहने वाला है, स्लाइड्स भी आपके साथ रहने वाली है। एंड स्लाइड्स में भी मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो हम बस आगे की बात करते हैं 20 मिनट्स में, मुझे लगता है। सो आगे है फीवर। So fever is a hallmark response during infection and diseases, and that has been proven that is there through the millions of years in all endothermic as well as ectothermic species में है। And ये जो थर्मल एलिमेंट है फीवर का, ये अपने आप में एक सिस्टेमिक अलर्ट है कि एक इम्यून सर्विलेंस बॉडी में हो रहा है। शरीर में कहीं ना कहीं शरीर का जो इम्यून मैकेनिज्म है उसका सर्विलेंस चल रहा है। सो ये एक अच्छी इमेज थी, एक नेचर। आप अगर फीवर, इम्यून मैकेनिज्म एंड नेचर कह दोगे तो सबसे पहले ये नेचर का पेपर आ जाएगा। तो इसमें इन्होंने जैसे कि कहा है कि बैक्टीरिया आ गया, तो उसमें इग्निट करने वाले क्या है? इग्निट करने वाले जो है दे आर टोल लाइक रिसेप्टर्स, TLR। एंड देन वो जो TLR है वो एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेजेस को।
एंड साथ साथ दूसरा LPS दैट इज की लाइपोपॉलीसैकेराइड। सो ये सभी जो होते हैं DAMP यानी कि डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ये सभी रिकॉग्नाइज करने वाली मशीनरी है। तो ये मशीनरी ये सब कुछ रिकॉग्नाइज करके एक्टिवेट कर देगी। सब कुछ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक्टिवेट करेगी मैक्रोफेजेस को एंड डेंड्रिटिक सेल्स को, एंड देन दे विल लीड टू रिलीज ऑफ कि जो हाइपरथर्मिक रिएक्शंस देंगे, ऐसी वो मतलब हाइपोथैलेमस पे वो सब कुछ चीजें सिक्रेट करेंगे, एंड देन फीवर बॉडी में एक्टिवेट होगा, एंड देन दैट विल लीड टू की एक्चुअल टेम्परेचर राइज या फिर एसिटिल कूलिंग कर ली, जिसके कारण की मसल्स में आपके ये आ जाएगा मायल्जिया जैसा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अंगमर्द वगैरह वो उत्पन्न होगा। सो दैट इज हाउ फिजियोलॉजिकल बेसिस फीवर का है। इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेस, सो हाउ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का संबंध है इम्यूनिटी से, नो डाउट है, लेकिन वो अगर एक स्लाइड में अगर बहुत ही बेसिक अगर हमको समझना है तो बहुत सारी इमेजेस देखने के बाद आई हैव सॉर्टेड दिस वन, जिसमें आप देख सकते हो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उसने एक्टिवेट दो चीजों को किया। एक तो HPA हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, एंड दूसरा एक्टिवेशन ऑफ ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी। देन बढ़ेंगे क्या क्या, बढ़ेंगे कॉर्टिसोल, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, एंड देन ये जो हार्मोन्स है ये फिर इम्यून सेल्स को सिग्नलिंग करने वाले हैं। देन इम्यून सेल का सिग्नलिंग दैट विल एक्टिवेट अपोप्टोसिस और अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन। अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन भी अपोप्टोसिस को एग्रीवेट करेगा, या फिर अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन कुछ इंटरफेरॉन्स को कम करेगा जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी है, और जो प्रो इंफ्लेमेटरी है जैसे कि IL-6 यहाँ पे दिख रहा है, इनको बढ़ाएगा, and that will ultimately lead to immunosuppression. So that is how stress will activate via two mechanisms, HPA and ANS. So आयुर्वेद के हिसाब से स्ट्रेस कैसे क्या इम्यूनिटी पे काम करेगा, तो ये सिर्फ अग्रेसर भी खोल के देखेंगे तो भी विषादु रोग वर्धना नाम है, या फिर सौमनस्यम गर्भधारणा नाम है, या फिर मन का मतलब निद्रा और मन चिंता मुक्त होना, ये ब्रूहणा नाम कहा गया है। ब्रूहण होने के लिए अग्र संग्रह में नहीं बोले, लेकिन लंघन ब्रूहणीय चैप्टर में। सो मन का संबंध ब्रूहण का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ मांस बढ़ेगा, कोई चीज ब्रूहणा नाम कही है कि ये ब्रूहण होने के लिए वो पर्सन ने चिंता मुक्त रहना चाहिए, और फिर वो वराह जैसा, वराह युवा पुष्यति, सॉरी, उसने निद्रा लेनी चाहिए और उसने चिंता भी मुक्त रहना चाहिए। सो इसमें सिर्फ मसल टिश्यू थोड़ी ना होगा, उसमें ग्रोथ हार्मोन भी तो लगेगा। So each and everything is immuno, PNI, psychoneuroimmunoendocrino. Altered immune response in Parkinson's, ये इमेज मतलब ढेर सारा लिटरेचर है, लेकिन उसको अगर एक इमेज में करना है तो ये आपके सामने है कि ऑटो इम्यून डिसीजेस में ही पार्किंसंस डिसीज की ये बढ़ी हुई आपको मिलेगी, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी ड्रग्स पेशेंट लेता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेता है, उसके साथ ये एसोसिएटेड है, या फिर सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स जो है दैट बिकम्स इम्पेयर्ड इन द पेशेंट्स विद पार्किंसंस, या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस हैज शोन दैट पार्किंसंस डिसीज एंड ऑटोइम्यून डिसीज शेयर मॉलिक्यूलर पाथवेज एंड रिस्क वेरिएंट्स की जो सेम है। Altered gut microbiota and inflammatory markers are similar in Parkinson's disease and autoimmune diseases. So that is how cancer and Parkinson's disease, ये दो भले ही clear cut autoimmune diseases में लिस्ट में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो आते हैं, क्योंकि बेसिक देखिए मतलब वैद्य को क्या करना है, IL-6, IL-10, IL-2, IL-12 सब कुछ मैंने पढ़ा, मैं दिन भर यहाँ पर फिजियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, दिन भर मैंने पढ़ा, लेकिन शाम को जब मैं अपने क्लिनिक में जाके बैठता हूँ तो वो IL-10 है, IL-E है, IL वो है, उससे मुझे लेन देन नहीं होती। दैट टाइम एक वैद्य करके जब मुझे काम करना है तो मुझे पाक को रोकना है, पाक हो रहा है ये मुझे समझना है, आवरण हो रहा है ये मुझे समझना है। सो बेसिक जो फेनोमेनॉन जो है वो तो जो मैंने बेसिक में बताया था कि टी इफेक्टर एंड टी रेगुलेटरी एंड उसका बैलेंस, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मेजोल
मेजर इम्यूनोलॉजिकल अल्टरेशंस ड्यूरिंग इम्यूनोसेनेसेंस, ये कुछ डिसीज नहीं है, लेकिन वार्धक्य में, वृद्धावस्था में जब इम्यूनोसेनेसेंस हो जाएगा, इम्यूनिटी कम होगी, तो क्या क्या होता है एग्जैक्टली तो उसमें फिर ये है कि किस तरीके से मतलब एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी वहां पर कम होगी, इंटरफेरॉन वाई का क्या रोल होगा, तो फिर ट्यूमर एंटीजन का वहां पर मतलब एक इम्यून रेजिस्टेंस जो ट्यूमर का, दैट्स व्हाई ओल्ड एज इज रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। दैट इज सिंपली बिकॉज कि ओल्ड एज में इम्यून रिस्पॉन्स ढंग का नहीं है जो यंग पर्सन में था। सो यंग पर्सन में क्या था, एक लाइन में कहे तो अग्नि, धात्वग्नि और ऊर्ज और धातु बल, दैट्स इट। सो वो वहां पर नहीं था। या फिर आगे की स्लाइड अगर देखेंगे तो इम्यून मैकेनिज्म इन कैंसर, इफेक्टर एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो ये आपके सामने स्लाइड है इम्यून मैकेनिज्म इन कैंसर वाली। शायद स्लाइड थोड़ी सी हो सकता है, बहुत सारे ये इसमें थोड़ी सी 1 मिनट बाद आती है। ट्यूमर का इनिशिएशन दिखाई दे रहा है। सो जैसे बॉडी में ट्यूमर बनना शुरू हो गया तो बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी, वो जो साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म था वो सब कुछ शुरू हो गया। नेचुरल किलर सेल्स आ गई, CD8 सेल्स आ गई, TH1 CD4 सेल्स आ गई, साइटोटॉक्सिक मैक्रोफेजेस आ गए, न्यूट्रोफिल्स आ गए, और ये लड़ रहे हैं ट्यूमर के साथ। लेकिन क्या ये ट्यूमर से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाए, इसलिए आगे जाके इन सिटू कार्सिनोमा दिख रहा है। एंड देन आगे जाके पूरा वो मेटास्टेसिस हुआ है। सो मेटास्टेसिस जब हुआ है तब इम्यूनो टॉलरेंस है, एंड यहाँ पर जब है इनिशियल स्टेज है तो ट्यूमरोसाइडल इफेक्ट है। सो ये ट्यूमरोसाइडल इफेक्ट कम होता जा रहा है, एंड इम्यून टॉलरन्स, इम्यून सिस्टीम गेंड्याच्या कातडीसारखी झाली आहे, त्याला काही फरकच पडत नाहीये, तो वाढत गेलेला दिसतोय आपल्याला, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट टाइम क्या बढ़ेगा? दैट टाइम प्रो ट्यूमरल मैक्रोफेजेस, दैट टाइम रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी बी सेल्स, इमैच्योर डीसी, इमैच्योर डेंड्रिटिक सेल्स, प्रो मेटास्टेटिक न्यूट्रोफिल्स दिखाई दे रहे हैं। So it's all about immune tolerance versus tumoricidal effect. That is the immune mechanism in cancer. So एक mechanism है ये pro-tumor, anti-tumor roles of innate immune cells in cancer. So particularly कौन सी वाली सेल, tumor proliferation की स्टेज है, elimination की स्टेज है, metastasis की स्टेज है, तो वहां पर कौन सी वाली स्टेज में कौन से वाले इम्यून रिलेटेड सेल्स एक्टिवेटेड मिलेंगे, ये सब कुछ इसके बारे में ढेर सारा लिटरेचर है। ड्यूअल रोल ऑफ टी सेल्स इन कैंसर एंड मेटास्टेसिस। सो ये ट्यूमर इम्यूनोजेनिसिटी वर्सेस ट्यूमर, मतलब ट्यूमर को कम करने वाला मैकेनिज्म। तो इस हिसाब से ढेर सारा लिटरेचर इज देयर मूविंग टू SLE। यस, देयर इज डिफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज अगेन, एंड एपोप्टोटिक सेल्स का क्लियरेंस न होना है, ये भी एक है। ये देखिए, ये आपके सामने जो इमेज है ग्रीन एंड ब्लू वाली आ जाएगी, आई गेस। सो पैथोलॉजी ऑफ SLE, भले ही SLE की पैथोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसको अगर एक स्लाइड में रखना है, एंड दैट टू विद इन लिमिट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, जो कि मुझे विषय दिया गया है, तो उसमें ये देखिए SLE आपके सामने है कि पैथोलॉजी ऑफ SLE भले ही मल्टीफैक्टोरियल है, लेकिन इसमें व्हाट इज पाइवोटल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ इट, लोअर्ड सेल्फ टॉलरेंस एंड इंक्रीज्ड एपोप्टोसिस इज पाइवोटल। इंक्रीज्ड एपोप्टोसिस, धातुपात, और क्या है ये? इनिशियल ट्रिगर, आप जैसे कि एरो देख रहे हैं, इनिशियल ट्रिगर आ गया, इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन हो गया, इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन हो गया तो सेल्फ टॉलरेंस कम हो गया, एपोप्टोसिस बढ़ गया, ऑटो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ, एंड देन दैट विल लीड टू इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये जो ब्लू वाला कलर साइकिल है, दैट हैपेंस इन SLE पेशेंट्स। एंड व्हाट इज नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स? नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स में इनिशियल ट्रिगर आ गया, उसके बाद में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गई। तो आपको याद होगा, मैं 20 मिनट पहले कह रहा था TH1 TH2। सो TH1 का जो रिस्पॉन्स है उसको कम करने के लिए है IFN, इंटरफेरॉन्स। सो इंटरफेरॉन्स आ गए एंड उन्होंने वो धातुपात होने से बचा लिया।
लेकिन वो नहीं बचाते हैं तो दैट विल लीड टू इंक्रीज अपोप्टोसिस. दिस इज एट द बेसिस ऑफ एसएलई. बाकी तो एसएलई का ढेर सारा लिटरेचर है. ये भी एसएलई वाला ही दूसरा इमेज मैंने डाला है कि प्रोडक्शन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज हो गई एंड देन altered clearance increased apoptosis in SLE. SLE में हो क्या रहा है, वो जो apoptotic bodies बन गई है उसका एक तो क्लियरेंस अल्टर्ड है, वो निकल जाना चाहिए, वो निकल भी नहीं रहा है, and increased apoptosis and that is leading to inflammatory pathology. जबकि नॉर्मल वाले में नॉर्मल वो क्लियरेंस हो रहा है and that's why there is no immune response. That is how it is there कि the very basic pathology of SLE. पैथोलॉजी तो आगे देखी जाएगी, मैं फिजियोपैथोलॉजी के लिमिट में रह के बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट स्लाइड इज अगेन नाउ मूविंग टू आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग. अब ये सब कुछ लिटरेचर हमारे पास है, हम सभी के पास 1 GB दिन का है, पबमेड है, सब कुछ है. असली जो समस्या है वो आगे की आती है कि इसको आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे. एंड आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग करते वक्त भी प्रैक्टिशनर के व्यू पॉइंट से उसको करना चाहिए, वरना अनफॉर्चुनेटली देयर इज सो मेनी लिटरेचर, इसको ये कहेंगे, उसको वो कहेंगे. वो सब कुछ कहने से मतलब ठीक है, वो कहने से 1-2 कागज हो जाते हैं, लेकिन क्या पेशेंट ठीक होता है उससे, ये देखना बहुत जरूरी होता है. तो पेशेंट का एंड यूजर पेशेंट है, ये ध्यान में रखते हुए और प्रैक्टिशनर का पर्सपेक्टिव ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ चीजों को आयुर्वेदिक परिभाषा में ट्रांसलेट करना इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आई एम जस्ट पुटिंग, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इस पे कुछ अपनी राय वगैरह रखूं. मैं बस क्या है क्या नहीं है इसको बस रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा था कि ठाकुर सर का एक आर्टिकल हमने बीच में पढ़ा था सभी ने कि एक वो ज्वर एसएलई की केस थी और उन्होंने वसंत कल्प यूज करके एज ज्वर समझ के उसको ठीक किया था. कोई वैद्य है वो उसको वातरक्त समझ के ठीक किया. ऐसा 1-2 पेपर जैसे हम पबमेड पे चले जाते हैं तो वो पेपर सबसे पहले ऊपर आ जाता है देखने के लिए. सो यस देयर आर वैद्यास एंड उन्होंने अपने ओपिनियंस रखे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ इसको ये कहेंगे उसको ये कहेंगे वाला कॉलेज वाला चीज से ये नहीं होगा. सो साइटोकाइंस को क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है. तो जहां तक मेरी राय है, साइटोकाइंस आर जस्ट मैसेंजर्स. वो मैसेंजर्स है, वो पेप्टाइड आगे जाके टिश्यू को या तो टॉक्सिसिटी वाला रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा है, क्लियरेंस अच्छा कर रहा है. सो दैट इज जस्ट अ मैसेंजर, तो उसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है साइटोकाइन को. साइटोकाइन मैसेंजर है तो मैसेंजर का हेतु देखना होगा कि ये साइटोकाइन बढ़ा क्यों और किन कारणों से. तो वो टिश्यू डैमेज या इन्फेक्शन किस टाइप का है ये देखना ज्यादा जरूरी है. एंड उससे उत्पन्न हुआ कार्य कौन सा है, उससे उत्पन्न हुआ व्रण है या उससे उत्पन्न हुआ श्वास है या उससे उत्पन्न हो कि अभी मायोकार्डाइटिस, ऑटोइम्यून मायोकार्डाइटिस होके मर रहा है, ऐसा कुछ डिसीज है. मतलब होता है ऑटोइम्यून, मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑटोइम्यून मायोकार्डाइटिस भी है. सो कर्म इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, उस हिसाब से ऑब्वियसली हमारे द्रव्य बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा कुछ नहीं है मेथोट्रेक्सेट या फिर कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो ये फलाना इंटरल्यूकिन को कम करेगी. और चाहे कोविड हो, चाहे वो ऑटोइम्यून रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, हम वही देंगे. जब कोविड आया तो इन लोगों ने क्या किया, वो जो मेडिसिन HCL जो कौन सा था अपना रोमेटिक हार्ट डिसीज में, वही उन्होंने प्रिवेंशन के लिए यूज कर लिया, क्योंकि उनके हिसाब से वो बस चीज है. आयुर्वेद में वैसा पक्का नहीं होगा. तो आयुर्वेद में जो होगा, आयुर्वेद में हेतु एग्जैक्टली कौन सा है, किस टिश्यू का कौन सा वाले इन्फेक्शन से ये हुआ है एंड उससे उत्पन्न कार्य क्या है, इसके हिसाब से हमारे मेडिसिन बढ़ेंगे. तो वो साइटोकाइन कुछ भी हो, हमको एक लिमिट के आगे उसको देखना नहीं है. हमारा जो परिप्रेक्ष्य होगा वो तो निश्चित रूप से हेतु लिंगा औषध वाला ही परिप्रेक्ष्य होगा. सो इन्फ्लेमेशन को आयुर्वेद में क्या कहेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है. और इस पे आई गेस मुझे चाहिए कि आई गेस इस पे कुछ कहने की, लोगों ने बोलने की आवश्यकता है, और वो भी प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद करने वाले लोगों ने, क्योंकि
इन्फ्लेमेशन यानी शोथ, इन्फ्लेमेशन ये नहीं वो, ये सब कुछ तो बहुत कुछ पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन यानी क्या? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी तो है। टी रेगुलेटरी बाद में उसको मिटा भी रही है, तो इसको शोथ हम कह सकते हैं क्या? शोथ एज अ व्याधि करके जो आया है, जिसमें कि त्रिदोष, सीरा और रक्त ये दुष्ट करके आते हैं, और जो कि पांडु का उपद्रव स्वरूप है, वो शोथ या फिर त्रिशोथीय चैप्टर में, त्रिशोथीय चैप्टर में महर्षि चरक जी ने जो अलग अलग ऑर्गन्स में आने वाले इन्फ्लेमेशन का ही लगभग वर्णन किया है, वो वाला शोथ, उसमें अंतर क्या है ये हमको देखना पड़ेगा। सो इसे शोथ कहते हैं क्या? कह सकते हैं क्या? यस, हाँ भी और ना भी, ये उसका आंसर होगा। लेकिन इन्फ्लेमेशन अगर वैद्य को समझना है तो मुझे लगता है हमको डिसीजेस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन समझने होंगे, क्योंकि देखो एंटी इन्फ्लेमेटरी सब कुछ है, त्रिफला भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शतावरी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन एक वैद्य जब त्रिफला यूज करता है, शतावरी यूज करता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। एक कंडीशन संतर्पणत्व होती है, एक कंडीशन अपदर्पणत्व होती है। सो वैद्य को अपने हिसाब से चीजों की तरफ देखना होगा। तो इन्फ्लेमेशन समझते वक्त मुझे लगता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से होने वाले डिसीजेस हमको समझने होंगे आयुर्वेद के हिसाब से, एंड देन ये रखे बिना हम इन्फ्लेमेशन इज इक्वल टू शोथ ऐसा कहने में कुछ पॉइंट नहीं है। तो व्हाट आर द डिसीजेस? देयर आर डायबिटीज, कोरोनरी वेसल डिसीज, आर्थराइटिस, एलर्जीज, सीओपीडी, सोरियासिस, these are the important diseases. So what are the triggers? तो ये डिसीजेस में क्या होता है? ये डिसीजेस का आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो इन्फ्लेमेशन का आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग होगा। या फिर हेतु, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के हेतु क्या है? तो हेतुओं में वो कहते हैं, हेतु यानी कि ट्रिगर्स, क्योंकि ये मॉडर्न का पार्ट है, तो हेतु इज नॉट अ मॉडर्न वर्ड। सो ट्रिगर्स क्या क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के? तो ओल्ड एज, ओल्ड पर्सन होना, एज आपका ज्यादा है, ये इन्फ्लेमेशन के लिए कारण हो सकता है। दैट्स व्हाई ओल्ड एज इज कॉज फॉर कैंसर वगैरह। ओबेसिटी, एडिपोसिटी, एडिपोस टिश्यू ज्यादा है तो वो इन्फ्लेमेशन का कारण है। स्मोकिंग इन्फ्लेमेशन का कारण है। लो सेक्स हार्मोन्स, ये भी इन्फ्लेमेशन का कारण है। स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन का कारण है। स्लीप इश्यूज इन्फ्लेमेशन का कारण है। तो इन्फ्लेमेशन इज इक्वल टू शोथ, ऐसा एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन हमको कल को जब ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी का बेसिक एंड दैट टू आयुर्वेद की पैथोफिजियोलॉजी अगर हमको समझनी है, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रेगुलेट नहीं हुआ जिससे होने वाले डिसीजेस है। तो इन्फ्लेमेशन मतलब शोथ ऐसा जंप करने के बजाय हमें ये अब देखिए, ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, आई एम प्रीटी सीरियस। These are triggers of chronic inflammation, and that is very established with lot of evidence in modern medicine. तो हमारा काम बस ट्रांसलेशन का है। इन्फ्लेमेशन ही, अगर इन्फ्लेमेशन यानी आयुर्वेद में क्या, ये अगर समझना है तो हमें ट्रांसलेट करना होगा कि ओल्ड एज में क्या है। ओल्ड एज में अग्नि, जैसे मैं 2 मिनट पहले कह रहा था, धातु बल कम है, ओज कम है, अग्नि कम है। ओबेसिटी में क्या है? मेद है, स्थौल्य है। लो सेक्स हार्मोन्स, दैट इज शुक्रक्षय, ओजक्षय, स्ट्रेस, इससे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इससे होने वाला इन्फ्लेमेशन है, न कि सिर्फ शोथ है। तो इन्फ्लेमेशन आयुर्वेद में शोथ ऐसा कहने के बजाय वो किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, कौन से डिसीजेस उत्पन्न कर रहा है, एंड कौन से साइंस एंड सिम्टम्स उत्पन्न कर रहा है, ये देखना ही वैद्य का काम होता है। एंड ये जब हम लोग देखते हैं तो ये हमको इम्यून मैकेनिज्म जो है वो ज्वर से लेके वातरक्त तक हमको वो मिल जाता है। क्योंकि इम्यूनिटी आयुर्वेद में कहाँ पे ढूंढेंगे? सो इम्यूनिटी आयुर्वेद में कहाँ पे ढूंढेंगे? तो लोग सबसे पहला हमारे मन में भी, लोग क्यों, हम लोगों को क्यों कहें, हम खुद को भी कहेंगे। जब कोविड आया और लोगों ने हमसे पूछा कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी कहाँ है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आया था कि व्याधि क्षमत्व है। लेकिन वो एक शब्द के बदले शब्द देने से काम नहीं होगा। हमको हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो हेतुलिंग औषध का है। तो हेतुलिंग औषध वाले पर्सपेक्टिव में अगर हमको इम्यूनिटी देखनी है तो हमको इम्यून मैकेनिज्म में आने वाले बॉडी रिस्पॉन्सेस, वो साइंस एंड सिम्टम्स एंड वो डिसीजेस समझने होंगे। तो पहला हॉलमार्क है ज्वर, इन्फेक्शन का, इम्यून क्लियरेंस का वो एक सिग्नल है बॉडी ने दिया हुआ, ज्वर। सो फीवर वो आंतरिक भी हो सकता है, लेकिन बहिष्ठ कारणों से भी तो हो रहा है।
सो इम्यूनिटी हमको ज्वर में ढूंढनी होगी, इम्यूनिटी हमको चौथी अध्याय में ढूंढनी होगी, इम्यूनिटी हमको गुल्म में भी ढूंढनी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि ऑर्गन्स में और टिश्यूज में होने वाला क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स का तो हमको निश्चित रूप से गुल्म में गृहिणी में जाके ढूंढना पड़ेगा। बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू वाला है उसके लिए तो हम लोग मस्कुलोस्केलेटल के लिए वात व्याधि वगैरह के मेडिसिन यूज करते हैं। स्थौल्य एंड मेह ये इसका एक बेसिस फॉर्म करते हैं। तो ये मेद ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है देखना होगा। एंड गंभीर वात रक्त, सो धातुपाक या फिर आवरण, ये दोनों फेनोमेनॉन्स वायु द्वारा रक्त का मार्ग का आवरण किया जाना भी है। एंड गंभीर वात रक्त करके टिश्यूज भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा वाला फेनोमेनॉन हमको वात रक्त में मिलता है और वात रक्त के मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। तो दैट इज हाउ इन्फ्लेमेशन को या टी रेगुलेटरी टी इन्फेक्टर को हमको आयुर्वेद में समझना होगा। एंड दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। शोथ इज नॉट एवरी टाइम संतर्पणोत्था। सो शोथ के बजाय मैंने इन्फ्लेमेशन कहना चाहिए था एक्चुअली। सो इन्फ्लेमेशन इज नॉट एवरी टाइम संतर्पणोत्था। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है कि इन्फ्लेमेशन है तो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। तो हम अक्सर कह देते हैं कि इन्फ्लेमेशन इज नॉट एवरी टाइम संतर्पणोत्था। सो इन्फ्लेमेशन कहते ही थोड़ा सा हमको यूं लग सकता है कि ये संतर्पणोत्था चीज है, लेकिन देयर आर डिजेनरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस and the best example is macular degeneration, that is even inflammatory. Parkinson's disease, that is inflammatory. Alzheimer's, that is again degenerative plus inflammatory. And coronary vessel disease में भी वो जो plaques होते हैं जो actually वो सर्जन निकालता है, तो वो कितने सारे पेशेंट्स में वो plaques में necrotic changes हो चुके होते हैं। तो वो जब बंदा ये कर रहा है एंजियोग्राफी एंड दैट टाइम वो जो प्लाक्स उसको नजर आ रहे हैं वो हर बार कुछ तो मेद की संचिति है और हर बार उसको हृदयार्णव रस पारा गंधक ताम्र, क्योंकि ताम्र में छेदन वेदन और अपदर्पण के लिए यूज करूंगा, ये हर बार सोचने की आवश्यकता नहीं है। द प्लाक्स इन कोरोनरी वेसल डिसीज आर मेनी टाइम्स नेक्रोटिक। एंड हम देखते हैं वहां पर हृदयार्णव रस या फिर ताम्र यूज करने के बजाय योगेंद्र या फिर हेमगर्भ या फिर ओशोवर्धक कोल्ड कंपाउंड से ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इज इक्वल टू संतर्पणोत्था इज इक्वल टू ताम्र एंड कुछ तो लेखन दिया, इसकी आवश्यकता उसको नहीं होती, उल्टा उसको आवश्यकता होती है मर्म की रक्षा करने की, और वहां पे काम में आता है योगेंद्र रस। सो ये चीज बहुत जरूरी है कि even that plaque in coronary vessel disease is necrotic and that is evidence। वो evidence है मतलब क्या वो मतलब पोस्टमार्टम के बाद ये स्टडीज हो चुके हैं एंड उसमें ये बताया गया है। सो एक वैद्य का निदान वहां पर संतर्पणोत्थ है कि अपदर्पणोत्थ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एंड उसी पे उसकी चिकित्सा आगे जाके डिपेंड करेगी। And then moving to the next is danger, non-danger. I guess एक दो स्लाइड सी बची है। I will conclude within 5 minutes. So इसमें जो है कि yes, it's not about danger and not about non-self. It's about danger. आपके सामने स्लाइड है। It's not about danger and not about non-self. तो 2004 तक, ये काफी लेटेस्ट कह सकते हैं, ऐसा रिसर्च है। 2004 तक इम्यूनोलॉजी का जो बेसिस था वो ये कहा जाता था कि इम्यूनिज्म का काम है सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करना, क्या मेरा है क्या तेरा है। सो ये तेरा है, ये मेरा नहीं है, ये कुछ तो बुलेट आ गई स्किन में, या फिर ये कुछ तो कीला लग गया तो लोखंडी तो वो अंदर आ गया, तो ये नॉन सेल्फ है, ये मेरी बॉडी का टिश्यू नहीं है। ये रिकॉग्नाइज करना इम्यून सिस्टम का काम है, ऐसा 2004 तक समझा जाता था। उसके बाद में एक मॉन्यूमेंटल काम किया, आई गेस एम से उस साइंटिस्ट का नाम शुरू होता है, मैं नाम भूल गया, लेकिन she is a lady and she put the theory that it's not self and non-self but danger and non-danger.
सो भले ही बाहर का हो, लेकिन वो जो स्टील का अच्छी क्वालिटी का जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ आपकी दादी माँ के लिए आपने वो जो इम्प्लांट डाला है उसके फीमर नेक के ऑपरेटिव के टाइम पे, वो बॉडी एक लिमिट तक एडजस्ट कर लेती है। क्योंकि वो चीज डेंजरस है कि नॉन डेंजरस है, ये रिकॉग्नाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये नहीं कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ है। दिस इज द मेजर चेंज इन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर 2004। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली डलन को देखिए, डलनाचार्य कह रहे यत्किंचित बाधाकरम शरीरे तत्सर्वम शरीर। तो कुछ तो बाहर का है, 5 मिनट्स, कुछ तो बाहर का है तो वो शल्य है, ऐसा डलनाचार्य नहीं कह रहे। यत्किंचित बाधाकरम, जो भी बाधा करेगा। सो इट्स नॉट जस्ट सेल्फ एंड नॉन। सो नाउ कंक्लूडिंग, दूष्य ऑटोइम्यून में रक्त देखा गया है, मस्कुलोस्केलेटल है तो माउस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मेद भी है एंड त्रिमर्मों का इन्वॉल्वमेंट भी है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। से कौन सी ऑर्गन और कौन से टिश्यू का या फिर कौन सी सिस्टम का वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसके हिसाब से बदल रहा है, लेकिन इन माय ओपिनियन मैंने रखा है जहां तक दुष्ययन ऑटोइम्यूनिटी की बात है, रक्त मांस मेद एंड त्रिमर्मय है। दोष ऑब्वियसली ये त्रिदोष है और बहुत ही मतलब ट्रीट करने में तकलीफ देने वाली चीज है, लेकिन पित्त प्राधान्य तो पक्का दिखता है एंड कफानुबंध भी दिखता है, वायु का अन्य भी दिखता है, लेकिन पित्त प्राधान्य तो पक्का है। होने वाला फेनोमेनन अगर कौन सा है देखेंगे तो धातुपाक है एंड जब कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके बढ़ेंगे तो ये आवरण भी है एंड दैट्स व्हाई इसका एक निदान हर टाइम पे नहीं हो सकता। सो निदान कैन गो फ्रॉम ज्वर अप टू वात रक्त व्हाटएवर इट इज। एंड सो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा और ये मेरी आखिरी स्लाइड है आपके सामने। ये मेरा विषय नहीं है, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिशनर्स, अच्छे आयुर्वेद के ज्ञाता इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, फुल टाइम प्रैक्टिशनर्स भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, इसलिए मैं ये आखिरी स्लाइड में आपके सामने रखा हूं कि अल्टरनेट ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स इन आयुर्वेदा, बैलेंसिंग इम्यूनोमोडुलेशन वेरी। सो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में ये जो हम जब चिकित्सा सूत्र देखते हैं, गुल्म में है लंघन करिए ब्रोहन करिए, लंघन करिए ब्रोहन करिए, दीपन करिए ब्रोहन करिए, सहज काश में मिलता है और भी डिसीज में मिलता है, दीपन करिए ब्रोहन करिए, थोड़ा दीपन करिए थोड़ा ब्रोहन करिए। या फिर एक कोई ऑर्डिनरी वैद्य जिसको आयुर्वेद बहुत बड़ा नहीं आता, जिसने बहुत बड़ा ज्ञाता वो नहीं है, वो भी इतना तो समझ जाता है कि भाई पाचन कर रहा है बाद में ब्रोहन करना है, फिर अब ब्रोहन बहुत हो गया, आप थोड़ा पाचन कर लेते हैं। सो ये जो अल्टरनेट ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स है हमारे यहाँ पर, या फिर हम जब चरक में पढ़ते हैं, चरक की काज चिकित्सा पढ़ते हैं, तो उपक्रमों का एक विशिष्ट क्रम बताया है। या फिर ज्वर में है योग रत्नाकर का सूत्र कि लंघनम स्वेदनम कालो लंघनम ज्वरादो लंघनम पुरिया ज्वर मध्य तो पाचरम ज्वरांतरेचनम प्रोक्तम ये ज्वर चिकित्सा। सो मुझे लगता है कि ये जो इंडिविजुअल हर्ब लेके फाइटोकेमिकल साइंटिस्ट काम करते हैं, तो वो बस काम करते हैं कि एलोवेरा को हमने लिया और ये देखिए नेचुरल कलर सेल्स को कम कर रही है, ज्यादा कर रही है। एंड देन वैद्य कहता है कि माता मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, वो कोई तो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, वो पूछता है ना तो मैं क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं, जॉब छोड़ दूं, वो कुछ तो है ना। तो अब भाई तुमने रिसर्च किया कि एलोवेरा सेल से नेचुरल कलर सेल्स बढ़ रही है, तो मैं क्या करूं, मैं कुमारी तभी यूज करूंगा जब प्रॉपर वो दुष्य होगा, प्रॉपर वो कंडीशन होगी वगैरह वगैरह। सो ये एविडेंस जो है, तो मुझे ये लगता है कि आयुर्वेद के बेसिक्स जब तक उसमें नहीं आएंगे तब तक ये रिसर्च एक लिमिट के आगे कितना काम का है कह नहीं पाएंगे। और ये जो अल्टरनेट है सिस्टम्स, लंघन एंड ब्रूहन, दीपन एंड ब्रूहन, पाचन एंड ब्रूहन, तो ये कहीं ना कहीं इम्यूनोमोडुलेशन है। मतलब एक ट्रीटमेंट, एक उपक्रम या फिर एक वनस्पति हो सकता है आयुर्वेद की टी फैक्टर को बढ़ाएगी, दूसरी टी रेगुलेटरी करेगी। तो ग्रंथों ने कहीं पर भी एकल चिकित्सा बहुत ही कम की है। ग्रंथों में हमारे सीतोपलादी चूर्ण मिलता है जिसमें 32 भाग सीता भी है जो मधुर मधुर शीत है, और पिपली और त्वक भी है।
या फिर उपक्रम भी हम लोग देखेंगे तो ये बैलेंसिंग उपक्रम है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है TH1 TH2 का बैलेंस ये उपक्रमों का बैलेंस से हो सकता हो। ये बस मैंने अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात की। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for this elaborative session, especially physiological events in autoimmune diseases with modern physiology and some Ayurvedic concepts. Like concluding slide, Dushya in autoimmune disease, Rakta, Mausa, Meda, and Trimarma, Dosha dominance, Pitta, Kapha, and whether it is Jwara or Vata Rakta. So, thank you very much. If anybody is having question, you may ask in chat box, or we'll conclude this session. There is one question. धात्वाग्नि तीक्ष्ण होने पर धातु क्षय अग्नि विचार हर समय जरूरी है विचार करना ऑटोइम्यून डिसीज में। I'm not getting what you want to ask. धात्वग्नि तीक्ष्ण होने पर धातु क्षय अग्नि विचार समय जरूरी है विचार करना ऑटोमेटिक। यस, धातु पाक तो इम्पोर्टेंट फेनोमेनॉन है। धातु पाक ओवर इन्फ्लेमेशन ये निश्चित रूप से धातु पाक है। अब धात्वग्नि तीक्ष्ण होने से उल्टा वो धातु बनने की प्रोसेस होगी या इन्फ्लेमेटरी होगा, वो तो अलग, वो तेषां साधिभ्याम वो वाला श्लोक है। प्रत्यापरत को ऑटोइम्यून डिसीज में कैसे सोचे? यस, प्रत्यापरत इज अ बिग टर्म दैट इंक्लूड्स सो मेनी हेतुस। चिन्मय जी, यस सर। क्या ना इंक्लूड थोड़ा सा मुझे एक जगह जाना। क्या? हेलो, इंक्लूड कर ले। यस 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 यस, थैंक यू या थैंक यू। नाही सर, कंक्लूड नाही केले सर, तुम्ही बोलू शकता सर। You may ask a question or drop your questions to me personally. I'll forward to sir. Thank you very much.